never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. रिटायरमेंट आगे तय की। सीनियर ग्रुप एग्जीक्यूटिव की रिटायरमेंट एज 65 और जनरल रिटायरमेंट एज 75 रखी गई। इस पॉलिसी के बाद उत्तराधिकारी का इशू खुद ही सॉल्व हो गया, क्योंकि मोदी को हटाया गया। सेठ और कक्कर खुद हट गए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। उत्तराधिकारी का मुद्दा खत्म होने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की सब्सिडी को टाटा सम नाम का उपयोग करने के एवज में रॉयल्टी देने के लिए तैयार किया, और साथ ही ये नियम भी बनाया कि कंपनी ग्रुप ऑफिस को रिपोर्ट करेगी। उन्होंने ऐसे बिजनेस से जहां कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, ये बिजनेस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, कंपनी को बाहर निकाला। इनमें सीमेंट, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक सबसे मुख्य है, और कंपनी को टेलीकॉम, फाइनेंस, रिटेल और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एंटर करवाया। रतन टाटा 21 साल इस पद पर रहे और उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। जब उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया, तब कंपनी की आय का साधन कमोडिटी सेल्स थी लेकिन उनके टेन्योर के खत्म होने पर आय का मुख्य साधन ब्रांड्स थे। सबसे पहली सफलता रतन टाटा की थी टाटा सम्स को इंडिया सेंट्रल कंपनी के एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। 2000 में टेक्ली को खरीदकर रतन टाटा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। फिर साउथ कोरिया के डेवाओ मोटर्स को खरीदा, फिर एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को खरीदा। लेकिन सबसे स्वीट एक्विजिशन था जैगुआर लैंड रोवर का। 1999 में जब रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने की पेशकश लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए थे, तो फोर्ड के मालिक ने टाटा को कहा था, जब पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट क्यों किया। 2008 में इसी फोर्ड को दिवालिया होने से टाटा ने बचाया। जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर, हालांकि इस
खरीद पर 2500 करोड़ रुपए के नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रतन टाटा ने अपनी सोच और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक मेहनत की। टाटा नैनो, जिसके द्वारा वो भारत के हर घर में गाड़ी लाना चाहते थे, एक ऐसा ही सपना था टाटा नैनो का। टाटा नैनो का सपना रतन टाटा ने देखा जब उन्होंने एक परिवार को बाइक पर बारिश में भीगते देखा। टाटा नैनो जब आई, जब उसने गाड़ियों की कीमत बाजार में कम करने में भी काफी मदद की। 2012 में 75 साल की उम्र पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्ट्री को उनकी जगह पर टाटा सन्स के चेयरमैन बनाया गया, जिन्हें विवाद के चलते हटना पड़ा। इसी कारण अक्टूबर 2016 में रतन टाटा फिर इंटरिम चेयरमैन बने टाटा सन्स के। जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन के टाटा सन्स का चेयरमैन बनाए जाने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बिजनेस में रतन टाटा की परफॉर्मेंसेस उनके टैलेंट की गवाही देती है, लेकिन रतन टाटा सिर्फ अपने बिजनेस सेंस के ही कारण प्रसिद्ध नहीं है। उनकी मानवता और दयालुता स्वभाव भी काफी प्रसिद्ध है। अपनी यूनिवर्सिटी कॉर्नेल को $50 मिलियन की डोनेशन उन्होंने दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस को अल्जाइमर पर रिसर्च के लिए उन्होंने 750 मिलियन रुपए उन्होंने दिए। दुनिया की सब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में टाटा स्टडी सेंटर है, चाहे वो हार्वर्ड हो या MIT हो। ये सेंटर विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च को फंड करते हैं। मुंबई में टाटा सन्स का जानवरों का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल है। खुद रतन टाटा को कुत्ते से बेहद प्यार था और टाटा ऑफिस में मॉनसून में डॉग शेल्टर बनाने के लिए उनकी काफी चर्चा थी। 2021 में 2 साल पहले अस्वस्थ अपने एक एम्प्लॉय को देखने पुणे में उनके घर भी चले गए थे और साथ ही वादा किया कि जिंदगी भर उनकी तबीयत का खर्चा उठाएंगे और बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। मुंबई हमलों के बाद ताज होटल जब रेनोवेशन के लिए बंद करना पड़ा, तब भी उन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी देना जारी रखा। रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश करने का भी काफी शौक था। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से भी पैसे स्टार्टअप्स में लगाए। स्नैपडील, ओला, शाओमी, नेस्टवे आदि कुछ स्टार्टअप्स हैं जहां उन्होंने निवेश किया। रतन टाटा ने भी कहा था कि उन वैल्यूज और एथिक्स के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जो लेगेसी पीछे छोड़कर जाना चाहूंगा वो बेहद सिंपल है, और वो है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए खड़ा हुआ जो मुझे ठीक लगे, और मैं जितना संभव था उतना फेयर और निष्पक्ष रहा। आज दुनिया भर में जिस तरह का शुभ संदेश की झड़ी श्री रतन टाटा की श्रद्धांजलि देने के लिए लगी है, उससे पता चलता है कि रतन टाटा एक बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़कर गए हैं, जिसे छूना अगर असंभव नहीं तो काफी मुश्किल जरूर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजे दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।